Assalamu alaikum. Coming to our fifth lecture on the topic of blood, we are going to talk about the blood groups. Now, you have read about the RBCs from the first chapter of your blood, and then you have studied the inflammation from the second chapter, which involved the WBCs. After that, we talked about immunity, in which there were different reactions which protected the body from foreign invasion. And now the next topic, next chapter in your book is blood groups. The history of this blood groups is that the people from their experience came to know that loss of blood can lead to death of a person. And some people thought that if we give blood to this person, this death may be avoided. कुछ लोगों ने डायरेक्ट एक बंदे से ब्लड लेके दूसरे में ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश की, उस वक्त जबकि ट्यूबिंग्स और नीडल्स का जमाना आ चुका था। कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ और लोग मरते मरते बच गए, और कुछ लोग बुरी तरह बीमार हो गए। तो it was soon discovered that blood of different people have different antigenic properties. आप एंटीजन एंटीबॉडीज पढ़ चुके हैं इम्यूनिटी में, इसीलिए ये चैप्टर जो है वो आरबीसीज के बाद अब 2 चैप्टर्स के बाद आया। So having antigenic properties, blood transfusion can cause severe reactions in the body of recipient. It is seen that at least 30 commonly occurring antigens and hundreds of other rarely occurring antigens are found in the human blood cells, but most of them are weak. उनका इतना रिएक्शन नहीं होता है। Two particular groups of antigen important to cause blood transfusion reactions include the ABO blood group system of antigens and RH blood group system. अब जो हम बात करने लगे हैं उसमें आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जो आप पहले से जानते हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाया जा चुका है। Different people have different blood groups, और इसमें 47% of the population has got blood group O, 41% has got blood group A, 9% has got blood group B, and 3% of the people have got blood group AB. The importance of blood groups is that the blood transfusion in case of severe blood loss and life-threatening anemias can be done after proper matching of the blood groups, and blood grouping is also done to settle paternity disputes and other medico-legal procedures. ये किसी ज़माने में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि हम पैटर्निटी के जो मामलात हैं उनको सेटल करें ब्लड ग्रुपिंग के ज़रिए, जबकि अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आ चुकी है और उसके बाद अब इसकी अहमियत कम हो गई है। ब्लड ग्रुपिंग की तमाम तर जो बेसिस है वो जेनेटिक ओरिजिन है। एंटीजेंस किसी में ए हैं या किसी में बी हैं या जिस तरह भी हैं, आप अपने एफएससी में भी पढ़ चुके हैं और आप अपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ चुके हैं, और अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जीन्स मौजूद है। The ABO blood group genetic locus has 3 alleles. किसी बंदे में एलीली A है, किसी में एलीली B है, और किसी में O है, और किसी में AB है। और एक वक्त में एक क्रोमोसोम पर या तो A होगी या B होगी और O होगा, और जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या कॉम्बिनेशन होता है उसके मुताबिक हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है।
आइए देखते हैं कि हमारे एंटीजेंस जो हैं एबीओ ब्लड टाइप्स के, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सी जो है ना आपके पास, ये मेम्ब्रेन का सेरामाइड ग्रुप है, ये लिपिड है। इसके ऊपर जी जो है ये वाला, ये ग्लूकोज मॉइटी है। फिर दूसरा जी जो है ये गलेक्टोज मॉइटी है। फिर तीसरा जी जो है ये एन एसिटाइल गलेक्टोसामीन है। और चौथा जी जो है वो दोबारा इसमें गलेक्टोज लगा हुआ है। तो ये जो चार मॉलिक्यूल हैं जी 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 और जी, इसमें है ग्लूकोज, गलेक्टोज, एन एसिटाइल गलेक्टोसामीन और फिर दोबारा से गलेक्टोज। इसके साथ साइड चेन में फ्यूकोज लगाते हैं तो ये एक एंटीजन बनता है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में वी हैव डिसाइडेड दैट द ग्लाइकोलिपिड्स कॉज give antigenic property to a glycolipids of the cell membrane give antigenic properties to a सेल। तो जो आरबीसीज है उसकी सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन है उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड फॉर्म जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एच एंटीजन। इफ a person has got another N-acetyl glucose galactosamine on the outer portion of this H antigen, this person will have a blood group A. If the person has got galactose at the outer portion of this H antigen attached to it, this person will be having a blood group of B. Now coming again to the alleles of the blood groups, ABO blood group include allele A, B and O, and only one of these alleles is present on each of the two chromosomes. Now we have also identified substance H and substances A and B in the previous slide. And now I am going to tell you that if a person has got A allele in his blood group, the enzymes convert the substance H into substance A by adding N-acetyl galactosamine to the outer portion. If this person has got blood group B genes, the enzymes of these genes convert the substance H to substance B by adding galactose at the outermost portion of the substance H. If a person has allele A on one chromosome and allele B on the other chromosome, both enzymes are present and they will convert the substance H into substances A and B. If a person has got O blood group, the genes in that person will have inactive enzymes located on them and they will remain, the cell membrane will have the substance H which will not be converted to any of the substances A or B, and thus this person will not have the antigenicity allocated by N-acetyl galactosamine or galactose at the outermost portion of H substance. Up till now, we have been talking about the antigens A, antigen B, and no antigen, calling that person a blood group O. Now, we are going to talk about the antibodies against these antigens, and along with that, we shall be talking about Land-Steiner's law. If antigen A is there, antibody to this antigen is called anti-A antibody. For antigen B, the antibody to antigen B is called anti-B antibody. So, the Land-Steiner's law states, if an antigen is present in the red cells of the blood, the corresponding antibody must be absent from the plasma of this person. यानी अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप ए है
उसके आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ग्लाइकोलिपिड मौजूद है, वो ब्लड ग्रुप ए टाइप का है, तो उस शख्स के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी. If an antigen is absent in the RBC, the corresponding antibody must be present in the plasma. So अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर एंटीजन बी मौजूद नहीं है, तो उस शख्स में एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद होगी. तो ये एंटीबॉडीज की प्रेजेंस अब हमारे लिए नया टॉपिक आया at this moment when we are talking about Landsteiner's law. And now we see blood types, their genotypes and their constituents, agglutinogens and agglutinins. पहले ये बात कि एग्लूटिनोजेंस का मतलब है एंटीजन और एग्लूटिनिन्स का मतलब है एंटीबॉडी, और जीनोटाइप का मतलब है कि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग हमारे पास कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं. सो जीनोटाइप ओ का मतलब है दोनों क्रोमोसोम्स पर ओ मौजूद है, और इसमें जो फिनोटाइप है वो ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है. एंड द एंटीबॉडीज आर एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी. इफ द genotype is OA or AA, the phenotype will be A. जो शख्स ब्लड ग्रुप ए रखता है फिनोटाइप में, उसकी कंपोजिशन जीनोटाइप पर यह हो सकती है कि दोनों क्रोमोसोम्स पर ए एंटीजन के जीन्स मौजूद हों, या फिर एक क्रोमोसोम पर ओ और एक क्रोमोसोम पर ए एंटीजन का जीन मौजूद हो. इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी आरबीसी पर, दैट विल बी एंटीजन होगा आरबीसी पर, दैट विल बी ए, and the antibody according to Landsteiner's law will be anti-B antibody. Similar is the case for blood group B having anti-A antibodies, and then the blood group AB has got a phenotype of AB. Both the antigens A and B are present in this blood group and no antibody is present in the plasma. डायग्रामेटिकली आप देख लें, टाइप ए के ऊपर ये गोल दायरे वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये मौजूद हैं और ये एंटीजन ए है. इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो मौजूद है वो एंटीजन ए को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती. टाइप बी वाले ब्लड सेल्स के अंदर जो टाइप एंटीजन है वो ये देखें आप, ये ट्रायंगल से बने हुए हैं, तो इसके वाले एंटीबॉडीज जो हैं इसके प्लाज्मा में वो इससे मैच नहीं करती और इन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होता. टाइप ए बी के अंदर दोनों तरह के एंटीजन मौजूद हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, और टाइप ओ के अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, दोनों तरह की एंटीबॉडीज इसमें मौजूद हैं. इस स्लाइड में जो खास बात आप देख रहे हैं वो ये है कि एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज आईजीएम टाइप की हैं और सीरम में मौजूद होती हैं. एंटीजन और एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज का जो टाइप है वो आईजीएम है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जिसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ये जो हैं ये सीरम में मौजूद होती हैं. और अब हम आ गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मामले पर. यूनिवर्सल डोनर एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि एक ब्लड तमाम ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है. तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप. The blood group B can give blood to B blood group and AB blood group. Similarly, A can donate blood to A blood group and AB blood group. So AB blood group is a universal recipient and O blood group is a universal donor. इसमें आप ये देख लें कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो दो आरबीसी एक एंटीबॉडी के साथ क्लम्प हुए हैं,
और जब आप देखें कि कई एंटीबॉडीज और कई आरबीसीज इकट्ठे हैं तो इनकी क्लम्पिंग में एक एंटीजन पे कोई एंटीबॉडी और दूसरी और तीसरी, तो ये बहुत बड़ा क्लम्प बन सकता है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, हो सकता है बाय वे ऑफ मैक्रोफेजेस और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए इसमें लिटिक कॉम्प्लेक्स बन के ये डिस्ट्रॉय होगा या फिर मैक्रोफेजेस इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और इसे कहते हैं हिमोलिसिस। Talking about the Rh blood types, the Rh antigen could be present in a person and then the person will be called Rh positive, or it could be absent in a person and then the person will be called Rh negative. The most common genotype for a positive Rh person is D type, and both of the chromosomes, if they are taking dominant D genes, the person will be D positive. If one of the dominant genes is present on one chromosome with the other having recessive gene, the blood group will again be positive. And if this is the composition, both recessive genes, then the composition is Rh negative. It is seen worldwide that in America, 95% of the Black Americans are Rh positive and 5% of the Black Americans are Rh negative. The white persons are 85% Rh positive and 15% are Rh negative. In Africa, 100% of the black population in Africa is Rh positive. Now, this is the slide that you have seen in your practical. How do we determine a blood group of the blood group of a person? We take the blood sample on a dish, glass slide. We add anti-serum A to the blood drop in one slide, and on the other slide to the same drop we add anti-B, and to another slide on the same drop we add anti-D. If there is clumping by adding anti-A, this means this person has got blood group A. If the anti-D also shows clumping, this person has got A positive blood. Here, if the anti-B serum shows clumping and anti-D serum shows clumping of the RBCs, the person has got B positive result. If the three slides, all of them show clumping, the person has got AB positive blood. And if none of the slides shows clumping, the person has got O negative blood group. And this chart was also shown to you in practical slides: anti-A serum, anti-B serum, anti-D serum, and a control slide which shows that nothing is being added to this slide. Now, how to read? You can see it that the last of these has got clumping in all of them. As the control group, there was no anti-serum added to the control group, then it means that if you have got all the slides showing clumping, this slide is in this test is invalid and you will have to wash the slides and do the test again. Either your anti-sera are defective or the blood film was having some impurities on itself, because of which clumping is seen everywhere. Now coming to the topic of blood transfusion, blood ग्रुप्स पढ़ने का मकसद ही ये है कि क्या हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी हो तो हम उसको सक्सेसफुली दे सकेंगे या नहीं। तो सबसे पहले, व्हाई डू वी नीड टू गिव blood transfusion to a person? The indications could be: number one, replace the blood lost due to injury or burns or surgical operations, etc. इंजरी में तो आप देखते हैं ब्लड वेसल कट गई है तो फिर ब्लड लॉस होगा। बर्न्स में एक्चुअली
प्लाज्मा लॉस होता है और सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर वेसल्स कटती हैं और ब्लड लॉस होता है। Blood transfusion is also indicated in cases of severe anemias. हीमोग्लोबिन 7 हो 6 हो तो पेशेंट जो है वो कार्डियक फेलियर में जा रहा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, और ऐसे में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। We have to talk about blood typing now, and forward blood typing and reverse blood typing का मतलब ये है कि पहले जो है आपको डोनर का ब्लड, पहले रेसिपिएंट का ब्लड लेकर उसके साथ डोनर के ब्लड जो हैं उनको टाइप किया जाए कि भाई दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप है कि नहीं, और फिर उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड ब्लड टाइपिंग का मतलब ये है कि पहले आप एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी डालकर देखें कि क्लम्पिंग हुई कि नहीं, और दूसरी मर्तबा आप एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन डालकर देखें कि क्लम्पिंग हो रही है कि नहीं, ताकि दोनों एक दूसरे को कंफर्म करें, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से पेशेंट कैन डाई। सो बेहतर ये है कि आप फॉरवर्ड ब्लड टाइपिंग भी करें और उसे क्रॉस चेक भी करें रिवर्स ब्लड टाइपिंग से। क्रॉस मैचिंग का तरीका ये है कि मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग के लिए आप एबीओ ब्लड ग्रुप्स और आरएच ब्लड ग्रुप्स के जो आरबीसीज हैं पहले आप उनको सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद उन्हें डाइल्यूट करके फिर उनके अंदर, अब आपके पास प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा जब आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज जो आपके पास प्लाज्मा में थी वो हम बिल्कुल उनको अलग कर दिया हमने, सिर्फ आरबीसीज है हमारे पास। अब इसमें आप जो है वो एंटीसीरा डालते हैं और आप क्रॉस मैच करके देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, और डायरेक्ट आप उस स्लाइड के ऊपर पेशेंट के ऊपर रिसिपिएंट का ब्लड डालते हैं फिर, और देखते हैं कि क्लम्पिंग तो नहीं हुई, और फिर उसके बाद माइनर क्रॉस मैच में ये जो एंटी सीरा हैं दूसरे वाले वो भी इस तरह पता चल जाते हैं कि आप ब्लड जो है वो पेशेंट के ब्लड के साथ मैच करते हैं। अगर कोई माइनर ब्लड ग्रुप्स भी हैं तो वो भी अगर क्रॉस मैच आप कर लेते हैं पेशेंट के ब्लड के साथ तो आप सेफ हो जाते हैं कि पेशेंट को कोई खतरा नहीं है ब्लड ग्रुपिंग में। अब एक दफा आपने किसी पर्सन से ब्लड ले लिया है तो आपको उसको किस तरह रखना है ये भी सीखना पड़ेगा। द ब्लड इज कलेक्टेड इन स्टेराइल ग्लास बॉटल्स और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स। पहले होती थी स्टेराइल ग्लास बॉटल्स, अब आपके पास डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिनके अंदर जो क्लोज होते हैं, जिनके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज आर प्रेजेंट। तो ये डेक्सट्रोज जो है ये आरबीसी की न्यूट्रिशन के लिए, और सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट जो है ये कैल्शियम को, आयोनाइज्ड कैल्शियम को बाइंड करने के लिए, ताकि जो ब्लड आपने कलेक्ट किया है इट रिमेन्स फ्लूइड एंड डज नॉट क्लॉट। This blood in the plastic bag is, first of all, it is mixed with the contents of the bag so that proper anti-clotting is achieved, and then it is kept at 4 degrees centigrade. This blood can be used within 24 days, which however results in a loss of about 30% RBCs. पेशेंट डोनर ने अपना ब्लड दे दिया है तो आप उसको 24 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, वरना आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अगरचे 24 दिन के अंदर भी 30% ऑफ द आरबीसीज आर ऑलरेडी लॉस्ट। What we also need to know is that the blood has certain changes that occur in the blood during the storage period, and these are fall in the 2,3 biphosphoglyceric acid. ये जो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, you have studied about it in the FSC in the citric acid cycle, and this 2,3 biphosphoglyceric acid is responsible for releasing oxygen from hemoglobin when the hemoglobin and the RBCs reach the at the tissue level. So if there is 2,3 biphosphoglyceric acid destruction during storage of the blood, the oxygen delivery to the tissues will be defective. Fall in ATP, of course, that will help. ATP helps in maintenance of the
volume and the shape of the RBC, health of the proteins that are maintaining the shape of the RBC. So fall in ATP is going to be disastrous. Decreased activity of sodium potassium pump. अब ये अगर एक्टिविटी ये नहीं होगी इनकी तो फिर swollen हो जाएंगे आरबीसी और उससे वो फिर टूट भी सकते हैं. फॉल इन पीएच. जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूकोज को by the enzymes present in the RBCs, after that there is acidity production, lactic acid production, and this causes a fall in pH. Disappearance of platelets and granulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स की तो उम्र थोड़ी होती है 24 दिन तक, तो कहाँ, ये तो 2-3 दिन में ही. प्लेटलेट्स तो बहुत जल्दी और ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये 2-3 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 5 एंड 8. ये लेबाइल फैक्टर्स हैं, इनकी जो है स्टोरेज में ये कायम नहीं रहते और इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. ठीक है जी. सो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना जो है वो एक ऐसा काम है जिसमें खतरा बहुत ज्यादा है और ये एक्सपर्ट हैंड्स में होना चाहिए. So before transfusing blood to a person, the tests that must be done are blood typing, क्रॉस मैचिंग, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड स्क्रीनिंग फॉर द ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस. ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस कौन सी हैं वो अभी हमने अगले चार्ट में दिखा देनी है, इसलिए अब हम इस चार्ट में इसका टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे. और उसके अलावा जो प्रिकॉशंस फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है, इन टेस्टों के अलावा हमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. Now, coming to the complications of the blood transfusion, when we broadly classify them, two categories are identified. There could be immune complications and there could be non-immune complications. So the immune complications would be including hemolysis, antigen antibody बनी है तो hemolysis हो गई है. Acute hemolysis if IgM is involved, and delayed hemolysis if IgG is involved. IgM जो है ये आपकी ABO blood group में और IgG जो है वो आपकी RH blood group में involve होती है. RH blood group की जो hemolysis है वो लेट होती है, 2-3 हफ्ते के बाद शुरू होकर 4 महीने तक चल सकती है आहिस्ता आहिस्ता. और जो इम्यून आईजीएम की जो हिमोलिसिस है वो अर्ली होती है. दूसरी जो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें हिमोलिसिस के अलावा भी और इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि नॉन हिमोलिटिक होंगे. और फिर आपकी जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज नॉन इम्यून कॉम्प्लिकेशंस. So coming to the non-hemolytic immune reactions, these occur due to sensitization of recipient to donors' white cells and platelets or the plasma proteins. इनके ऊपर भी तो आपके पास एंटीजेंस होते हैं ना, डोनर्स वाइट सेल्स पर और प्लेटलेट्स पर या प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो खुद भी एंटीजेनिक हो सकती हैं. तो these reactions include फेब्राइल रिएक्शंस. अर्टिकेरिया खारिश होती है और वो बड़े बड़े स्वोलन एरियाज आ जाते हैं स्किन पर, और रेयरली एनाफाइलेक्सिस कैन डेवलप. अब ये लफ्ज आपके लिए सारे के सारे नए हैं. फेब्राइल रिएक्शन का मतलब ये है कि इम्यून रिएक्शन जो हुआ है वाइट सेल्स या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, उसकी वजह से फीवर हो गया. अर्टिकेरिया का मतलब है कि पर्सन को इचिंग महसूस हुई है और उसके स्किन पर बड़े बड़े स्पोलन एरियाज नजर आने लगे हैं. और एनाफिलेक्सिस का मतलब है कि पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे फ्लूइड लीक हो रहा है और वो डायलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, कार्डियक आउटपुट लो हो गया है, एंड द पेशेंट इज इन शॉक. शॉक क्या होता है ये आप बाद में पढ़ेंगे, आज आप सिर्फ इसी लफ्ज को याद करेंगे.